Good morning, dear students. So today we are discussing about the principles of management. In our last video, we have already covered what are the various importances of principles of management. Like after using the various principles of management, it will help to increase the efficiency of the managers. It will help to make proper decisions. It is also helpful for optimum utilization of the various resources. So जो मैनेजर होता है वो जब प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, वो उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज हो पाएगा, प्रॉपर डिसीजंस कैन बी टेकन दैट मस्ट बी इफेक्टेड एंड दैट मस्ट सोल्व द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. So today we are going to discuss about what are the various principles of management, who is the author of the principles of management. ये जो जितने भी सारे प्रिंसिपल है ये कैसे डिराइव हुआ, उसका फादर कौन है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So the principles of management were derived by Henry Fayol. Henry Fayol was born in the year 1841 in France. Henry Fayol was born in the year 1841 in France. So in 1860 he joined as a junior engineer in a mining company, and he rose up to the position of MD. MD stands for Managing Director in 1888. He rose up to the position of Managing Director of the mining company. Then in 1960 he published a book, and on that book he has given all his principles of management. So the person Henry Fayol was born in the year 1841 at France. Then he joined as a junior engineer in a mining company in the year 1860, and he rose up to the position of managing director of the company in 1888, and he retired after 30 years. 30 years means in 1890 he retired from his job. Then he published a book in 1960. So when he was joined in that company, the position of the company was very bad. Means we can say the position of the company going to insolvent, and it is in the position of bankruptcy. But when the Henry Fayol joined as its managing director, he took the position of the company at a very good condition, and it was the leading company of that particular time. So Henry Fayol ने क्या किया, अपने जो लाइफ टाइम जितने ईयर उन्होंने काम किया, तो उस टाइम में क्या किया, उन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ों का. फिर उन्होंने एक बुक पब्लिश किया 1916 में. वो जो बुक था, वो बुक में उनका सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किया गया था. ठीक है. तो ये था हेनरी फेयल के बारे में. जनरल हेनरी फेयल वाज born in 1841. Then he joined as a junior engineer in 1860. Then in 1888 he rose up to the position of managing director of that company. Then in 1916 he published a book. So Henry Fayol is called as father of principles of management. So Henry Fayol जो बुक पब्लिश किया था 1916 में, उस बुक के वजह से हेनरी फेयल को क्या बोला गया है, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो सारे प्रिंसिपल का फादर बोला गया है हेनरी फेयल को. ठीक है. तो ये था हेनरी फेयल के बारे में. लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस principles of management which was given by Henry Fayol. Generally Henry Fayol was given 14 principles of management
जो सारे 14 प्रिंसिपल्स है वो सारे प्रिंसिपल मैनेजर्स क्या करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. लेट अस डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल्स which were given by Henry Fayol. So the first principle is principle of division of work. So this is the first principle which was given by Henry Fayol. According to Henry Fayol, what does it mean? The word division of work. ये जो वर्ड है डिवीजन ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या होगा? ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? सो डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स द टोटल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द स्टाफ्स so that each employee has to do only one work instead of doing all the activities. बिजनेस में जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे काम को क्या करेंगे हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे ताकि क्या होगा एक एम्प्लॉय एक ही काम करेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द एक्टिविटीज. सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क. ओके. सो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइडिंग द होल वर्क dividing the whole work of the organization among the various employees dividing the whole work of the organization among the employees so that each employee has to do only one work instead of doing all the activities. That is what division of work. So one employee has to perform only one task. So one employee has to perform only one task. So division of work automatically leads to efficiency of the employee. It also increases the efficiency of the employee and it also reduces the wastage or duplication of work. तो जब भी हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा एक एम्प्लॉय एक ही काम करेगा तो उससे क्या होगा उसका स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा उसका एक्सपर्टनेस आएगा और जो रेड्यूसेस क्या होगा मिनिमम जो वेस्टेज है वो रेड्यूसेस होगा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वो घटेगा. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो उनमें क्या होगा जब भी हम लोग सारी चीजों को परफॉर्म करेंगे अगर एक आदमी सारे काम करेगा प्रोडक्शन करेगा, सेल्स देखेगा, मार्केटिंग करेगा, फाइनेंस करेगा तो वहां पे क्या होगा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर वहीं पे हम लोग डिवाइड कर देंगे सारे काम जैसे कि एक आदमी हो गया प्रोडक्शन के लिए, एक आदमी हो गया मार्केटिंग के लिए, एक आदमी हो गया सेल्स के लिए तो वहां पे क्या होगा सारे काम अच्छे से हो पाएगा, इफेक्टिवली परफॉर्म होगा, सारे जो जितने भी गोल्स होगा जितना भी टारगेट होगा वो टारगेट अचीव हो पाएगा. तो ये क्या होगा डिवीजन ऑफ वर्क में. जैसे कि अभी हमारे यहाँ कॉमर्स में 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट के लिए 4 टीचर है तो वहाँ पे क्या हुआ है सारे सब्जेक्ट को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि कौन क्या पढ़ेगा. तो उसमें क्या होगा कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा, जो भी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब्जेक्ट है वो वही सब्जेक्ट को पढ़ाएगा तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हो गया. अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता तो क्या होता एक एम्प्लॉय आता वो सारे काम करता तो वहां पे डुप्लीकेशन होता वेस्टेज हो जाता. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है उसका मेरिट्स क्या क्या होता है, उसका डिमेरिट्स क्या क्या होता है, एडवांटेजेस एंड ऑल्सो द डिसएडवांटेजेस. मेरिट्स पहले उसका बेनिफिट क्या होगा अगर डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन मीन्स एक्सपर्टनेस. एक आदमी अगर एक काम को बार बार करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा इट विल इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय एंड दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. सो दिस इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. एक आदमी अगर एक काम को बार बार करेगा, एक आदमी है जो कि प्रोडक्शन का काम देख रहा है वो कंटिन्यूसली 2 साल 5 साल से प्रोडक्शन का काम ही कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसका स्पेशलाइजेशन होगा. स्पेशलाइजेशन में मतलब ही इज द बेस्ट or he can be the expert in that related field. Then the second point is in the merits.
हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को भी ग्रोथ करेगा अगर हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। क्यों करेगा? क्योंकि अगर हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो सारे काम ऑलरेडी डिवाइड हो गया है जितने भी एम्प्लॉयज है, तो उसमें क्या होगा, दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। उसी तरह डिमेरिट्स क्या क्या होगा? डिमेरिट में फर्स्ट पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट इज मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है, एक आदमी अगर एक काम को बार बार करेगा तो वो क्या होगा, ही कैन फील बोर और ही कैन फील मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब क्या हो सकता है, बोर हो सकता है। बोर मतलब एक काम को बार बार करने से वो क्या होगा, उसको मतलब वही काम को बार बार करने से बोरिंग लगेगा। उसी तरह यहाँ पे जो पॉइंट्स है जैसे कि स्पेशलाइजेशन हो गया और एक मेरिट हो गया higher efficiency. Then the demerits are, first one is monotony and the second one is lack of initiative. तो जैसे कि पहला पॉइंट हो गया monotony, उसी तरह दूसरा पॉइंट क्या होगा, lack of इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, एक आदमी एक ही काम करेगा तो वहां पे उसका कोई इनोवेटिव नहीं होगा, कोई क्रिएटिव नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगा। एक आदमी जो एक ही काम को बार बार करेगा वो वही काम को रिपीटेडली करेगा आज इट इज, जो जैसा काम था वो आएगा और वही काम को ही रिपीट करेगा। वहां पे क्या होगा, लैक ऑफ इनिशिएटिवनेस हो जाएगा। वहां पे मतलब कोई इनोवेटिव स्किल नहीं होगा, कोई नया आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो these are the various merits and demerits of division of work. मेरिट में क्या क्या हो गया, जैसे कि पहला मेरिट है स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क ultimately leads to the specialization of the employee. Higher efficiency. If we perform the division of work in a business, then it will automatically lead to the increase in the efficiency of the employees. Then monotony. Monotony means if one employee performs the same task repeatedly for a number of times, then he may feel bored. Then lack of initiative, as he performs the task continuously for a number of times, so there is a possibility that there will be no initiative, no new ideas, and no innovative something. So this is all about the first principle. Then the second principle. So then the second point is principle of parity between authority and responsibility. So the second principle is principle of parity between authority and responsibility. Here the word parity means equality. The principle, this principle states that principles of parity between authority and responsibility. Here two words will come. First one is your authority and second one is your responsibility. So authority का मतलब क्या होता है? Authority मतलब power vested in a particular position. So authority मतलब क्या होता है? Power होता है. Responsibility का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी. तो जहां पर भी अगर हम लोग कोई भी एक सिचुएशन में बात करेंगे, कोई भी एम्प्लॉइज को अगर हम लोग ऑथोरिटी देंगे तभी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर दिए हैं तभी उसको ऑथोरिटी देंगे। ठीक है, सो if we are asking an employee about the responsibility of a particular task, then we must have to give some authority to that particular person for doing that task. एक आदमी को अगर कभी भी हम लोग उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर कुछ पूछेंगे, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोगों को ऑथोरिटी देना पड़ेगा। अगर ऑथोरिटी दिए हैं तभी जाके रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बोल पाएंगे। तो जनरली क्या होता है, फेयर गिव्स दैट और फेयर सजेस्ट ओपिनियन दैट a person generally interested for an authority but he fears about the responsibility. कोई भी एम्प्लॉई या फिर कोई भी आदमी क्या करेगा, he generally interested for the authority, उसको पावर चाहिए, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब आएगा तो वो क्या करता है, मना कर देता है, वो he refuses about the responsibility part. So Fayol suggests that a good leader is the person who can take both authority and responsibility
part by part. So he commensurate both authority as well as responsibility. तो एक अच्छा लीडर किसको बोलेंगे? जो authority as well as responsibility को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एक आदमी को ऑथोरिटी दे दिया, ऑथोरिटी गिवन विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक आदमी को हम लोग ऑथोरिटी देते हैं तो उसके साथ क्या देना पड़ेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना पड़ेगा। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसके साथ ऑथोरिटी देना पड़ेगा। सपोज मान लो यहाँ पे एक आदमी को, एक एम्प्लॉय को हम लोगों ने ऑथोरिटी दे दी, ऑथोरिटी गिवन टू द एम्प्लॉय बट देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स। सो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑथोरिटी दे दिए हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, सो दैट लीड्स टू irresponsible behavior. So authority given without responsibility that leads to irresponsible behavior. एक आदमी को हम लोगों ने क्या किया? ऑथोरिटी दे दिया, एक आदमी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया या फिर प्रोडक्शन का मैनेजर बना दिया, लेकिन उसका कोई टारगेट फिक्स नहीं किया, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किए, तो वहां पे क्या होगा? दैट लीड्स टू इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वो क्या करेगा? अपने मर्जी से काम करेगा क्योंकि टारगेट तो कुछ भी फिक्स नहीं है। सो दैट लीड्स टू इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी। अगर उसका ऑपोजिट होगा, एक आदमी को हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है लेकिन ऑथोरिटी फिक्स नहीं की है, तो क्या होगा? इनएफिशिएंट, इनइफेक्टिव। दैट लीड्स टू इनइफेक्टिव। एक आदमी को हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है लेकिन उसको कुछ पावर ही नहीं दी है, उसका कुछ ऑथोरिटी ही नहीं दी है, तो क्या होगा? रिजल्ट इनइफेक्टिव होगा। सो देयर मस्ट बी पैरिटी और इक्वालिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी को अगर ऑथोरिटी देते हैं तो उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। सपोज मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर, तो एक सुपरवाइजर को हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि पर डे क्या करेगा? वो पर डे 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। तो एक सुपरवाइजर को हम लोगों ने क्या किया? पर डे 500 यूनिट का टारगेट फिक्स कर दिया है। तो अभी ये क्या है? उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तो उसके हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा? ऑथोरिटी देना पड़ेगा। तो ऑथोरिटी यहाँ पे किस चीज का ऑथोरिटी देंगे? तो यहाँ पे ऑथोरिटी क्या देंगे? वो अपने मर्जी से जितना एम्प्लॉय चाहिए उतना एम्प्लॉय हायर करेगा, काम जैसे हो पाएगा, टारगेट जैसे अचीव होगा उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो जब 500 यूनिट हो गया, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ऑथोरिटी क्या होगा उसका? कि उसको कितना एम्प्लॉइज चाहिए, हम लोग उसको उतना एम्प्लॉइज देंगे, उसको पावर देंगे कि उनको सुपरवाइज करेगा, और उसको पावर देंगे जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना यूज करेगा, लेकिन टारगेट अचीव होना चाहिए। ये क्या हो गया? उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल सर हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ ऑथोरिटी भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी क्या है? ये वो क्या है? सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, इसलिए प्रिंसिपल बोल रहे हैं। तो उनका मतलब ऑथोरिटी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया उनका? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बच्चे हैं उनका अगर किसी का कुछ हो जाएगा या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर होगा? उनके ऊपर ही होगा, प्रिंसिपल के ऊपर। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए यहाँ पे बोला गया है देयर मस्ट बी ए पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी को अगर हम लोग ऑथोरिटी देंगे उसके हिसाब से उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट के एक एक एचओडी होते हैं। वो जितने भी एचओडी हैं उनका ऑथोरिटी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका सब्जेक्ट कैसे अच्छा होगा, ऑथोरिटी क्या है? उनके डिपार्टमेंट में जो भी जितना काम हो रहा है वो सारे उनके अंडर में ही होगा, कंट्रोल में ही होगा। तो उसी तरह ही ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद ईच एंड एवरी पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल द मैनेजर्स वे हैविंग ऑथोरिटी एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो वही बात जो फेयर भी यहाँ पे बोले हैं कि जब भी हम लोग ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, द पर्सन और ए ग्रुप मैनेजर मस्ट हैविंग द ऑथोरिटी एज वेल एज
रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। तो उसका मेरिट क्या क्या होगा, डिमेरिट क्या क्या होगा। मेरिट, डिमेरिट। मेरिट में क्या होगा, बेटर रिजल्ट, तो फर्स्ट मेरिट क्या होगा, जब भी हम लोग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को अगर टारगेट देते हैं उसके हिसाब से ऑथोरिटी भी देंगे कि वो टारगेट को अचीव करने के लिए उसको क्या क्या पावर्स चाहिए, वो सारे पावर उसको देंगे। तो वहाँ क्या होगा, रिजल्ट को अचीव होने का चांसेस ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा, ऑथोरिटी रहेगा, तो ऑथोरिटी रहेगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अचीव हो सकता है। उसी तरह सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी फिक्स है, सारे मैनेजर का टारगेट ऑलरेडी सेट हो गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, उस टारगेट के हिसाब से अपना एफर्ट देंगे, अपना काम करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन द डिमेरिट्स आर, फर्स्ट डिमेरिट है मिसयूज ऑफ द ऑथोरिटी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब भी हम लोग एक मतलब इनकेपेबल पर्सन को अगर हम लोग ऑथोरिटी दे देंगे तो वहाँ पे क्या चांसेस हो सकता है, ही कैन मिसयूज द ऑथोरिटी। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसका कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे चीजों को परचेज करना है, कैसे कोटेशन रिसीव करना है, ये सारी चीज अगर उसको मालूम ही नहीं है तो क्या होगा, देयर इज ए चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ द ऑथोरिटी। एक इनकेपेबल पर्सन को अगर हम लोग पावर दे देंगे, ऑथोरिटी दे देंगे, तो मिसयूज ऑफ द ऑथोरिटी, मिसयूज हो सकता है वहां पे। देन द सेकंड डिमेरिट इज ओवरबर्डन। ओवरबर्डन का मतलब क्या होता है, एक आदमी के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो वो क्या होगा, ओवरबर्डन होगा। तो एक आदमी ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, दैट विल लीड टू द ineffective position. Okay, so these are the various merits and demerits of the second principle. So this is all about today's class. Let us discuss all the things in a summary form. The first one is all these principles of management given by Henry Fayol. So that Henry Fayol is called as father of principles of management. Henry Fayol was born in the year 1841 in France. He joined as a junior engineer in a mining company in the year 1860. Then he rose up to the position of managing director of that particular company in the year 1888. He retired after 30 years of working. That means in 1890. 30 years मतलब कितना हुआ? 30 years मतलब 1890 को उन्होंने रिटायर किया अपने जॉब से। तो जब उन्होंने वो जॉब में ज्वाइन किया था, उस टाइम में वो कंपनी का पोजीशन बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंट की तरह ही था, लेकिन उन्होंने जब ज्वाइन किया तो ही लीड्स द कंपनी इन अ वेरी गुड पोजीशन। सो ही पब्लिश्ड ए बुक। उन्होंने जितने साल में काम किया वो सारे सालों में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे काम अच्छे से होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश किया इन 1916। सो after published that book, he is known as father of principles of management. So Henry Fayol generally 1841 to 1925. So he died in 1925. Okay, this is all about Henry Fayol. Then he suggested 14 principles of management, which is a very most important part in your second year syllabus. So you have to remember all these 14 principles. So the first principle is principle of division of work. Division of work means the total work of the organization should be divided among all the staff, so that each employee has to do only one work. One employee has to perform only one task, so that there will be less wastage, minimum wastage is there, and that leads to specialization. These points were discussed in the merit and demerits. फर्स्ट मेरिट इज स्पेशलाइजेशन। एक आदमी एक काम को बार बार करने से उसका एक्सपर्टनेस बढ़ेगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। देन हायर एफिशिएंसी, इट आल्सो लीड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। एक आदमी एक काम को बार बार करेगा तो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह डिमेरिट, डिमेरिट मतलब दैट लीड्स टू मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, एक आदमी एक काम को बार बार करने से ही कैन फील बोर्ड और ही कैन फील मोनोटोनस। देन लैक ऑफ इनिशिएटिव, आज
one person has to perform one work in each and every time. That's why there is less initiativeness. There will be no creativity, there will be no innovative. All these things have to be done as it is performed. Then the second principle of parity between authority and responsibility. It is one of the most important point. And also parity मतलब क्या होता है? Equality. There must be a equality between authority and responsibility. Authority means power, responsibility मतलब जिम्मेदारी. तो एक आदमी को अगर हम लोग पावर देते हैं तो उसके साथ उसको जिम्मेदारी भी फिक्स करना चाहिए. Authority without responsibility leads to, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? Authority given without responsibility leads to irresponsible behavior. एक आदमी को अथॉरिटी दे दी है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की तो वो अपने मर्जी से काम करेगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा. लेकिन अगर एक आदमी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए हैं विदाउट अथॉरिटी, दैट लीड्स टू इनइफेक्टिव. एक आदमी सारे काम जानता है लेकिन उसके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, सो दैट लीड्स टू इनइफेक्टिव. सो द वेरियस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर बेटर रिजल्ट अच्छा होगा क्योंकि सारे काम अच्छे से ही होगा, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया होगा. देन इंक्रीज इन एफिशिएंसी. As the responsibility are fixed with each and every employee, each and every department. That's why they try to complete their goal within the standard time. So that's why it increases the efficiency of the employees. उसी तरह demerit क्या होगा? Misuse of authority. Sometimes the authority given to the incapable persons. That's why that leads to misuse of